جو معاملہ ہم دونوں کے درمیان ہے وہ خالصتاً پیسے اور برابری کی بنیاد پر ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات درست تھی کیونکہ چند دن پہلے میں نے لاسل کے رابطے کے دوران لارا کو اس کے اسی تحکمانہ لہجے پر بڑی رکھائی سے باور کروا دیا تھا۔ جیکی سمیت اس کے دونوں مشٹنڈے ساتھیوں کی آنکھوں میں میرے لیے بڑی خونخوار چمک ابھری۔ وہ اپنی مادام کے حکم کی بے چینی سے منتظر نظر آنے لگے کہ کب وہ انہیں مجھ پر پل پڑنے کا اشارہ کرے اور تینوں میری تکہ بوٹی کر کے رکھتے۔ میرے جواب پر لارا کے حسین چہرے پر بھی ایک لمحے کو تیش کی سرخی ابھری، مگر شاید کسی مصلحت کے تحت اس نے ایک گہری سانس لے کر جیسے خود کو پرسکون کر لیا اور بولی، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، لیکن کل صبح ڈی تمہیں لینے آئے گا۔ ڈی شاید تند خود جیکی کے علاوہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ میں نے اس کی بات پر صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ تینوں باہر چلے گئے۔ یہ بہت خطرناک لوگ تھے، لیکن حیرت ہے تم نے انہیں کیسے؟ ان کے مکان سے نکلتے ہی میوخ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تلے مجھ سے کہنا چاہا، مگر میں اسے نظر انداز کرتا ہوا شینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی حالت اب کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ سوبی نے اس کا جڑی بوٹیوں سے خوب علاج کیا تھا، البتہ زخم کو بھرنے میں وقت درکار تھا۔ اب موجودہ حالات میں شینا کا ساتھ میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا، لیکن ان صحرائی عقاب والوں کی یہاں موجودگی بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ وہ بنی بنائی راہ کھوٹی کر سکتے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کل صبح یہ میری ان باتوں سے کس طرح مطمئن ہونے والے تھے جو میں سوچ چکا تھا۔ میں تھکا ہوا تھا اور نیند سے بھی میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے اگرچہ دونوں میاں بیوی کو حوصلہ ہوا تھا، مگر وہ اب بھی انجانے خوف کا شکار تھے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کل صبح تک انہیں سنبھال لوں گا، بلکہ انہیں یہاں سے کچھ کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا کہ اب تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا میں چند گھنٹے آرام کر سکتا ہوں؟ ضرور، میوخ نے کہا اور پھر اپنی بیوی سے کچھ بولا۔ وہ میرے لیے فوراً سمور کا گرم بستر لے آئی جو میں نے آتش دان کے قریب اور شینا سے ذرا فاصلے پر بچھا لیا اور سو گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر جاگا، لیکن خود کو بے بس پایا۔ گہری نیند اچانک ٹوٹنے پر پہلے تو میرا دماغ ہی بوجھل سا رہا۔ چند لہجے تک میری سمجھ ہی میں نہیں آ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ حواس بحال ہوئے تو خود کو پہلو کے بل پایا، اس طرح کہ میرے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ ماحول میں ہڑبونگ سی مچی ہوئی تھی، گھٹی گھٹی چیخیں، رونے اور سسکنے کی آوازیں، اس درمیان شیطانی کہکے اور انسانی غراہٹیں تھیں۔ میں نے دیکھا وہ شیطانی ٹولہ ایک بار پھر وہاں آن دھمکا تھا۔ نہ جانے رات کا وقت تھا یا صبح دم بیدار ہو چکی تھی۔ میرے دونوں میزبان میاں بیوی اپنے دونوں معصوم بچوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور میری طرف تکے جا رہے تھے۔ بچے اپنی ماں اور باپ کے عقب میں دبکے کھڑے تھے۔ لارا کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی مکارانہ چمک اب ایک مسکراہٹ تلے ظاہر تھی۔ اس کے دو ساتھی بھی اسلحہ بدست اس کے دائیں بائیں موجود میری جانب زہر خند مسکراہٹ سے گھر رہے تھے۔ جیکی میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقانہ تاثرات تھے۔ شینا کو بھی جگا دیا گیا تھا اور وہ بے چین اور پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اوپر سے گرم موٹا لحاف ہٹا دیا گیا تھا۔ پل کے پل مجھے یہ سمجھنے میں مطلق دیر نہیں لگی کہ انہوں نے دھوکے سے دوبارہ شب خون مارا تھا اور جیکی نے مجھے سوتے ہوئے باندھ ڈالا تھا۔ میرے میزبان کا کتا ان پر بری طرح بھونکنے لگا تو جیکی نے ڈی کو اشارہ کیا۔ ڈی نے اس معصوم بے زبان کو جا دبوچا اور ساتھ ہی خنجر نکال لیا۔ اپنے پالتو کتے کے ڈی کے ہاتھوں متوقع بے رحمانہ حشر کے تصور سے سوبی اور میوخ چیخ پڑے۔ دونوں بچے بھی رونے لگے، لیکن ڈی کتے کو باہر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس معصوم بے زبان کی آخری چیخ ابھری اور خاموشی چھا گئی۔ ڈی جب لوٹا تو اپنا خون آلود خنجر صاف کر کے اپنی پنڈلی میں اڑس رہا تھا۔ ڈی کی اس بے رحمی پر قہر و غضب تلے میری حالت غیر ہونے لگی۔ سوبی اور بچے رونے لگے۔ میوخ نے دکھ سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کا پالتو کتا شاید بہت عرصے سے ان کے ساتھ تھا، بلکہ ان کے مختصر خاندان کا حصہ بن چکا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے مادام؟ میں نے پہلو کے بل لیٹے لیٹے لارا کو گھورتے ہوئے ہلکے بل چلا کر کہا تو اس وقت قریب کھڑے جیکی کی ٹانگ حرکت میں آئی، جس کی زوردار ضرب میرے پیٹ پر پڑی۔ میرے منہ سے درد انگیز کرہ نکلی اور میں دوہرا ہو گیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنی دوسری ٹانگ بھی چلا دی۔ میں تب تک اپنی سانس روک کر اپنے پیٹ کے عضلات کو تکلیف کی شدت سے بچانے کے لیے سخت کر چکا تھا، اس لیے دوسری ضرب سے مجھے کم تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کتے کے بچے نے اس پر بھی بس نہیں کیا اور لاتوں کی ضربات سے اپنی بھڑاس نکالتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے حلق سے چیخیں برآمد ہونے لگی اور شینا نے میرا یہ حشر دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ لارا نے اپنے ایک ساتھی کو مخصوص سے اشارہ کیا تو وہ فوراً لپک کر شینا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے اپنے ہی ساتھی یعنی جیکی نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ رک جاؤ ڈی، میں مادام کے حکم سے سب سنبھال لوں گا۔
डी नामी वो आदमी शैतानी अंदाज में हंसता हुआ वापस पलटकर अपनी जगह पर जा खड़ा हुआ। लारा ने शायद अपने इस बिखरे हुए कुत्ते जैकी को मेरे सिलसिले में फ्री हैंड दे दिया था। वो मुझे छोड़कर शीना की तरफ बढ़ा। इस संग दिल ने शीना के जख्मी पहलू पर लात चला दी। शीना के हल्क से शिद्दत दर्द तले ऐसी चीख उभरी जैसे वो आखिरी हो। इसके पहलू का जख्म खुल गया था। जड़ी बूटियों के लेप ने जरियाने खून रोकने का जो बंद बांध रखा था वो जैसे टूटा तो वहां से सुर्ख और गाढ़े खून की नदी बह निकली। वो किसी जख्मी बिल्ली की तरह सुकड़ कर कपकपाती और घुटे घुटे अंदाज में कराती रही। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाने लगी। शीना की ये हालत तड़पा देने वाली थी। शीना का जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी था। साथ ही मुझे पछतावा हुआ कि मैं इन मक्कार और संगदिल लोगों से गाफिल क्यों हुआ। ये लोग बेरहम और सफा की नहीं बल्कि हद दर्जे के मक्कार भी थे। जैकी बेरहमी से हंसने लगा और साथ ही मेरी जानिब तपा देने वाले अंदाज में घूरता रहा। इसकी आंखों में मेरे लिए वहशत अंगेज इंतकाम और बुग़्ज़ की आग भड़क रही थी। गुज़िश्ता रात मैंने उसकी पुरगुरूर अदा को जो धचका पहुंचाया था अब उसका उधार चुका रहा था, लेकिन लारा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो मुझसे बराबरी के लेवर और दोस्ताना अंदाज का बर्ताव रखे हुए थी और उसी ने अपने मुंह चढ़े और गुस्सा वर साथी जैकी को मेरे साथ उलझने से मना भी किया था। मगर अब शायद लारा की अपनी बदनीयती और मक्कारी भी खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। बदकिस्मती से मैं इस धोखे में रह गया था कि बम्बोरगा के मुजस्मे के हसूल के सिलसिले में लारा मेरे साथ मसाले से पेश आएगी, लेकिन इन लोगों ने शायद रात यहां से जाने के बाद कुछ और ही मंसूबा बना लिया था और यकीनन इसमें जैकी ही के मशवरे का ज्यादा दखल अमल हो सकता था। लारा, मैं हल्के बल चीखा। मेरा अंदाज ललकारने वाला था। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अपने इस बुज़दिल कुत्ते को पट्टा डाल दो इससे पहले कि तुम्हारे और मेरे बीच रामू वाले मुआमले की बात खत्म हो जाए। मैंने दानिस्ता अभी बोम्बोरगा वाले मुजस्मे का जिक्र नहीं किया था। मेरा ख्याल था कि लारा कुछ अकलमंदी से काम लेगी, मगर उसने बदस्तूर मक्काराना खामोशी इख्तियार करते हुए लाताल्लुकी का रवैया कायम रखा और अपने खार खाए साथी जैकी की तरफ देखा। इशारा क्लियर था। जैकी जैसे वहशी दरिंदे को वो फ्री हैंड दे चुकी थी। यही वजह थी कि जैकी पुरतैश अंदाज में दोबारा मेरी जाने पड़ा और अपने दोनों हाथों से मेरा गिरेबान पकड़ा और उठाकर मुझे खड़ा कर दिया। मुझे कुर्सी पर गिराने के से अंदाज में बिठा दिया और कहर आलूद लहजे में गुर्रा कर बोला, अब एक लफ्ज भी मादाम के लिए मुंह से निकाला तो तेरा हशर खारिश खाए कुत्ते की तरह कर डालूंगा। उसने ये बात मेरे चेहरे के इतने करीब होकर कही कि उसके सुवर जैसे थूथने से झाग के छींटे उड़ते मैंने अपने चेहरे पर महसूस किए। मुझे उस नापाक दरिंदे से कराहियत आने लगी, लेकिन इस नाजुक मौका पर भी उसे जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका। किसी कुत्ते के पिल्ले सुवर, मेरे हाथ खोल कर देख, तुझे मालूम हो जाएगा कि कौन किसका खारिजदा कुत्ते वाला हशर करता है। मेरे जवाब ने जैकी के तन बदन में जैसे आग लगा दी। उसकी सुवर जैसी चुनी चुनी आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कि वो मेरे सिलसिले में कोई इंतहाई कदम उठाता, लारा की आवाज ने उसे रोक दिया। जैकी, ये तुम्हें तैश दिलाता रहेगा और हमारा वक्त जाया करता रहेगा। काम की बात पूछो उससे, ये सब छोड़ो। जैकी भन्ना कर रह गया। फिर लारा खुद आगे बढ़ी और जैकी को पीछे हटा दिया। शीना की घुटी घुटी चीखें मुझे बेचैन कर रही थी। लारा मेरे करीब आकर मक्का राना फिरौनती से बोली, डियर शयान, बस खत्म करो अब। वो मुजस्मा मेरे हवाले कर दो बगैर किसी डीलिंग के। हम चले जाएंगे यहां से। मैं पहले तो खूनखार नजरों से उस मक्कार औरत को घूरता रहा, फिर बोला, लारा, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अब तुम फालतू बातों में वक्त जाया कर रहे हो। लारा दरमियान में बोली, हमारी बोट को हादसा पेश आ गया था। नेपाली और तिब्बती फोर्सेस से जान बचाकर हम पहाड़ी नाले में बोट समेत जा गिरे थे। वहां से बचते बचाते यहां तक पहुंचे। मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा। लारा की भवें सुकड़ गईं, नीली आंखों में उलझन तैर गई। फिर वो बोली, ट्रांसमीटर तुम्हारे पास मौजूद था। मैंने तुम्हें हदायत कर रखी थी कि पल पल की इत्तला मुझे देते रहना। शीना तकलीफ और जरियाने खून की वजह से हनूज करा रही थी। सुबह बेचारी इस दहशतज़दा माहौल के बावजूद उसकी मदद करने के लिए डरते डरते उसकी जानिब बढ़ी थी, मगर मरदूद जैकी ने बेदर्दी से उसे बालों से पकड़कर पीछे धकेल दिया। इसके दोनों मासूम बच्चे मां की चीखों पुकार पर रो पड़े। लारा के दो साथी इन्हें डरा धमका कर खामोश कराने की कोशिश करने लगे। मयूख ने अपनी बीवी को संभाल लिया। लारा, ये मेरी साथी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। लारा ने शीना की तरफ देखा। मैं फिर बोला, इस औरत को इजाजत दो, वो उसे संभाल ले, वरना हमारे दरमियान जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा। जिद का मैं भी कच्चा नहीं हूं। मेरे लहजे में जाने ऐसा क्या था कि लारा ने एक गहरी सांस देकर सोबी को इजाजत दे दी,
जैकी के चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे। वो बुलंद आवाज में लारा से बोला, मादाम ये इसकी कमजोरी लगती है, वरना ये मुजस्मे के बारे में कभी नहीं बताएगा। जैकी एक नंबर का रजील आदमी था। शीना से मुतल्लिक मेरी बेचैनी को भाप गया था, लेकिन दाव खेलना मैं भी जानता था। मैंने कहा, मुजस्मे की तलाश के लिए तुम लोगों को अब भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैंने ऐसा बम उछाला था कि लारा समेत जैकी भी बुरी तरह चौंके। तलाश क्या मतलब? लारा के मुंह से बरामद हुआ। मेरा ख्याल ठीक निकला। वो मुझे सही सलामत यहां पाकर समझे थे कि मुजस्मा मेरे ही पास है और मैं इतनी आसानी से इन्हें नहीं बताऊंगा। लिहाजा मुझ पर दहशत जमा कर वो इसे हासिल करने की तगदो में थे। मैंने बताया ना कि बोट को हादसा पेश आ गया था। मुजस्मे समेत 2 साथी भी बहते पहाड़ी नाले से नीचे जा गिरे थे। मैंने चाल जारी रखी। मुजस्मा जिस जगह पानी में गर्क हुआ वो मकाम मुझे याद है। ओह, लारा के मुंह से बेइख्तियार निकला। मेरा दिल अंदर से यकबार की जोर से धड़का। हालात ही ऐसे थे कि लारा को मेरे झूठ पर सच का गुमान हुआ था। मादाम ये बकवास कर रहा है, जैकी घुर्राया। मुजस्मा इसी मकान में छुपा रखा है इसने। तो फिर देर किस बात की है? तलाशी लो पूरे मकान की। लारा ने इन्हें हुक्म दिया। आन की आन में इन बदबख्तों ने सारा घर उलट दिया। मुजस्मा इनके हाथ नहीं लगा। सोबी और मयूक से भी डरा धमका कर पूछा गया था। इन बेचारों को भला क्या मालूम था? इन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो इन पर तशद्दुद किया गया। शीना बेहोश हो चुकी थी। लारा ने सोबी को इसे संभालने की इजाजत दे दी थी, लेकिन अब मकान में सब कुछ बिखर चुका था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से मेरे मेहरबान मेजबानों को यह सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। मेरे अंदर एक तूफान था जो उमड़ने को बेचैन था। एक आतिश फशां अंदर ही अंदर उबलने लगा था। हर तरह से नाकाम होने के बाद जैकी बिफरे हुए सुवर की तरह बेहोश और नीम मुर्दा हालत में पड़ी शीना की तरफ लपका। सोबी को एक बार फिर उसने बेदर्दी से परे धकेल दिया और शीना को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया और फिर गर्दन मरोड़कर सफाक लहजे में गुर्राते हुए मुझसे बोला, शायान आखिरी मौका दे रहा हूं, मुजस्मा कहाँ है? जैकी की इस बेरहमी पर मेरा खून खोलने लगा। मैंने कहा, जैकी, मैंने कहा ना कि मुजस्मे तक मैं तुम लोगों की रसाई में मदद कर सकता हूं। जैकी को घुराया। फिर उसने अपने लिबास से तेज धार करौली निकाल ली। वो उसे शीना के जिस्म में खोपने ही वाला था कि अचानक एक तेज सीटी की आवाज पर सब चौंक पड़े। ठहर जाओ जैकी, बास की काल आ रही है, लारा ने कहा और अपनी जेब से कोई आला निकालकर कान से लगाया और कोने में खिसक कर उससे बातें करने में मसरूफ हो गई। जैकी ने शीना को छोड़ दिया था और हाँफते हुए एक तरफ जा खड़ा हुआ। मुझे शीना की तरफ से तशवीश होने लगी थी और मैं उम्मीद भरी नजरों से सोबी की तरफ तकने लगा। आफरीन थी उस मेहरबान खातून पर। वो मेरी निगाहों में रहम की फरियाद भांप कर दोबारा शीना को संभालने के लिए बढ़ी। जैकी इस वक्त अपने दोनों साथियों के करीब जाकर इनसे बातें करने लगा। सोबी ने शीना के खुले जख्म पर दोबारा मरहम पट्टी करना शुरू कर दी। बाहर सर्द हवाओं का शोर जारी रहा। यह सब बड़ा बेरहम और जांकुश माहौल महसूस हो रहा था। मयूख ने अपने दोनों बच्चों को संभाला हुआ था। उसे अपनी रहम दिल बीवी की भी फिक्र हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर बेचैन और तड़प रहा था। मैंने थोड़ी देर पहले पुश्त के पीछे बंधे अपने दोनों हाथों के जकड़बंद खोलने की भी तकोदोश शुरू कर दी थी, लेकिन वो शायद किसी मजबूत रस्सी के साथ दोहरे तेरे अंदाज में बांधे गए थे। ज्यादा जोर लगाने की सूरत में मेरे चेहरे के तासरात और जिस्म की जुम्बिश से मेरी इस कोशिश का भांडा फूट सकता था। बास हेलीकॉप्टर में खुद यहां पहुंच रहा है। अचानक ही हरास ज़दा फिजा में लारा की आवाज उभरी। इसकी बात पर सब चौंक पड़े। क्या कहा मादाम? बास खुद यहां आ रहा है? जैकी हैरत से बोला। मगर क्यों? शट अप, मादाम ने उसे झिड़क दिया। बास मर्जी का मालिक है, मेरा यह मतलब नहीं था डार्लिंग, जैकी बेतकल्लुफी के साथ लारा से बोला। यहाँ का मौसम खराब है, सफर में इन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ जाए, ये बास बेहतर जानता है। लारा उसकी बेतकल्लुफी के बावजूद संजीदगी से उसे घूरते हुए बोली। और तुम अपने आप पर काबू रखो, बास ने शयान के सिलसिले में हमें नर्म और दोस्ताना रवैया रखने की ताकीद की है। ओह, क्या तुमने बास को सब बता डाला? जैकी के लहजे में तलखी ओहद कर आई। और तुम्हारा क्या ख्याल है? बास ये छुपाती मैं जबकि वो खुद यहां पहुंच रहा है। तुम्हें मसलहत से काम लेना चाहिए था, जैकी बोला। मसलन? लारा मुंह फुलाकर बोली। यही कि हम कामयाबी के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन तुमने सारी बात बताकर बास को न सिर्फ बददिल कर दिया बल्कि यहां आने पर भी मजबूर कर डाला। अब हम आजादी से काम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे इस आजादाना काम के तरीके से बास पहले ही आजिज है, लारा बोली। काश मैं तुम्हारा कहा न मानती। लारा और उसका सर चढ़ा साथी जैकी एक दूसरे से उलझ गए थे। मैं गौर से इनकी बातें सुन रहा था। सहराई उकाब का बिग बॉस यानी अल्बर्ट खुद हेलीकॉप्टर पर यहां पहुंच रहा था। इस खबर पर मैं भी चौंका था। शायद वो नेपाल या भारत के किसी शहर में आर्जी तौर पर फोकस था। इनकी बहस जारी थी।
मत भूलो लारा डार्लिंग कि इससे पहले 2 मुहिम्मात का मैं भी नायब बन चुका हूं। जैकी के लहजे में फख्र था। और तुम्हारी इन 2 मुहिम्मात की नाकामी को मैं ही नहीं, बॉस भी नहीं भूला है। इसलिए इस बार मुझे नायब बनाकर इसने दानिशमंदी का सबूत दिया है। मेरी ही अकल मारी गई थी कि तुम्हारी बातों में आ गई। लारा के लहजे में पछतावा था, इसमें बास की ठंडी पॉलिसी का दखल था। मेरा कसूर नहीं था, जैकी बेपरवाह लहजे में बोला। लारा डियर, अब भी तुम मेरी पॉलिसी पर अमल करती रहो तो 2 मिनट में मुजस्मा हमारे पास होगा। तुम बहुत बड़े जाहिल और गमवार हो। मुजस्मा शयान के पास नहीं है, लेकिन मुजस्मा इसी ने इधर कहीं छुपा रखा है। कहते हुए जैकी ने मेरी जानिब घूरा। कमबख्त का 100% ख्याल दुरुस्त था। अगर इस पहाड़ी नाले के किनारे घास फूस के गड़े का पता चल जाता तो यकीनन इनकी मुहिम की कामयाबी का सरखेल जैकी ही को समझा जाता। मेरा ख्याल है अब जबकि बास खुद यहाँ पहुंच रहा है तो आपस में उलझने का कोई फायदा नहीं। इनके दूसरे साथी डी ने पहली बार मुदाखलत की। इस पर इनका तीसरा साथी भी बोला, हमें खुश और मुतमईन होना चाहिए कि अब इस पेचीदा मसले को बास खुद आकर हैंडल कर लेगा। तुम सदा के बुद्धू और अहमक ही रहोगे जेठ। जैकी ने फुनकार कर अपने साथी को बुरी तरह आंख रख दिया। वो खाइफ होकर दुबक सा गया था। मैं बास को तकलीफ देना नहीं चाहता था। इस तरह हमारे इस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कब से हम इस मनहूस मुजस्मे को हासिल करने के लिए ख्वार हो रहे हैं। अब जबकि इसका सुराग मिलने की उम्मीद बल्कि समझो मिल ही गया है तो लारा ने अहमकाना बंद कर दिया और इसने बास को। गलत है। लारा ने जैकी की बात काट दी। बास का यहाँ पहुंचना उसकी अपनी मर्जी है। मनुष्य यहाँ आने का कब कहा? मैं तो पाबंद थी कि उसे मुजस्मे की तलाश और कामयाबी के चांसेस के बारे में पल पल की खबर देती रहूं और मैंने वही किया। बाकी बास का अपना फैसला है यहाँ आने का। खत्म करो, जैकी झल्ला कर बोला। मुझे जरा इससे बात करने दो। कहते हुए अपने दोनों बाजू खिलाता हुआ चंद कदम चलता हुआ मेरे करीब आ गया और चंद सानी मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा। फिर भेड़िए जैसे घुर्राहट तले बोला, अगर मुजस्मा तुमने कहीं छुपा रखा है तो हमारे हवाले कर दो, और जो डील हमने पैसों की रामू से कर रखी थी वो तुम्हारी हुई। मामला इधर ही खत्म हो जाएगा। हम अपनी राह लेंगे और तुम अपनी। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, जैकी मैं अब भी अपनी बात और डील पर कायम हूं, लेकिन तुमने बिला वजह खून खराबा फैला कर मेरा दिल खराब कर डाला। लेकिन फिर भी मैं ये सब भूल जाने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी बातें तुम दोस्ताना माहौल में करो तो पैसों का मुझे भी लालच है। मुजस्मा जिस मकाम पर पानी में गर्क हुआ है वो जगह मुझे याद है। हम वहां से शिट 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 जैकी हस्बे आदत पागलों की तरह बिफर गया। मेरी बात दरमियान में रह गई। उसने झल्लाकर एक हथड़ मेरे कंधे पर रसीद कर दिया। मैं इस तकलीफ को सह गया। वो सुर्ख चेहरे के साथ मेरे आगे झुकाया और गुर्राते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे साथ ब्लफ कर रहे हो। मुजस्मा तुमने इधर ही कहीं छुपा रखा है। ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर वो सीधा खड़ा हो गया। हम सब उसकी तरफ तकने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस अंदर खींचने लगा, यहाँ तक कि उसका चौड़ा सीना फूलने लगा। इसने जब अच्छी तरह हवा अपने फेफड़ों में भर ली तो वहीं रुक गया। मैंने फटी फटी आंखों से देखा, उसका चेहरा भी सुर्ख हो चला था। उसने सांस अंदर खींचने के बाद रोक रखी थी और उसके होंठ यूं खिल रहे थे जैसे कोई मंतर जंतर पड़ रहा हो।